Okay, Anushree, thank you. देखिए लास्ट क्लासेस तक हम लोगों का प्लांट फिजियोलॉजी का जो यूनिट है दैट यूनिट इज कंप्लीटेड ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इज रिमेनिंग। ठीक है, सो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस। अब आज हम लोग जो सिनॉप्टिक वे में रिवाइज करते हैं, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है वो चैप्टर, आप लोगों ने कहा था ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, चैप्टर 8 यूनिट थर्ड, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सिनॉप्टिक वे में ओनली एनसीईआरटी का पार्ट हम लोग पूरा पूरा रिवाइज करेंगे, तो सेपरेटली आप नोट कर लीजिएगा वो पार्ट, चैप्टर 8 को सिनॉप्टिक सॉरी सिनॉप्टिक वे में। ठीक है, सो begins with chapter 8 cell unit of life। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मिनरल न्यूट्रिशन ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको स्टडी करना है, व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल। ठीक है, व्हाट आर देयर डेफिशिएंसी डिजीजेस, इन व्हाट फॉर्म मिल्स आर एब्जॉर्ब, ओनली ये पार्ट आपको वहां स्टडी करना है। जब हम ये स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, सो इन डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक 1665 discovered dead cell, and he discovered in bark of oak tree. Generally the bark part, now you already study that bark is actually periderm and phloem, phloem and phloderm combinedly responsible for the formation of periderm, and phloem part of the periderm is called as cork. So generally आप study करते हैं, Robert Hooke first time discovered the cell in cork piece. Cork piece में, and what is cork piece? So it is a bark of oak tree. Remember the scientific name of oak tree, Quercus subur, and he first time discovered the dead cell. Later when the electron microscope is invented, so it is proved that कि originally Hooke discover cell wall. What is the shape? ये questions already आ चुके हैं, ठीक है? What is the shape that is discovered by Robert Hooke as a cell? So hexagonal and looks like honey bees comb. ठीक है, ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व द कॉम्ब ऑफ हनी बीज। तो हनी बीज के कॉम्ब का जैसे स्ट्रक्चर होता है, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही ऑब्जर्व, एंड एग्जैक्टली hexagonal structure, and the first picture of the cell, Robert Hooke used the term cell, but later on when the electron microscope discovered, so it is proved that cell is originally the cell wall. This kind of structure he observed, and book you remember, he published first picture in his book Micrographia. Okay, so this much part you remember regarding the discovery of dead cell. So this you remember. After that, when you come towards NCERT, so NCERT says that first living cell discovered by first living cell discovered
by Antony von Leeuwenhoek. ठीक है, and being a first living cell, what he discovered? So he first time discovered protozoa in drop of water. And originally Leeuwenhoek was not the biologist, he was a diamond merchant, and he used the hand lenses for study of the diamonds. But one time he observed the drop of water, pond water को use किया था उन्होंने, and in that he observed some of the moving structures, and then after he moved towards the biology and discovered that these structures are the protozoa के form में. After that RBC, WBC also discovered by the Leeuwenhoek. ठीक है ना, तो ये पार्ट यहाँ पे इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखेंगे. देन रॉबर्ट ब्राउन का दिया है कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस फॉर द फर्स्ट टाइम. सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में फर्स्ट पेज आपका सेल का दिया हुआ है. एंड व्हेन यू कम टुवर्ड्स द सेल, सो वन ऑफ द साइंटिस्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट वहां पे है बिसाइड्स द पेज, दैट रामचंद्रन लिखा हुआ है वहां पे. ठीक है, रामचंद्रन प्लॉट करके लिखा हुआ है. ठीक है, इन दैट डिस्क्रिप्शन, सो इन द डिस्क्रिप्शन यू अंडरलाइन द टर्म रामचंद्रन प्लॉट. एंड रामचंद्रन प्लॉट वी यूज, क्योंकि एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए हम रिवाइज कर रहे हैं. सो रामचंद्रन प्लॉट वी यूज ओनली टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, secondary structure of the protein, alpha and beta structures और alpha helix and beta sheets. वहां पे उस पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आपको everything is mentioned in that paragraph. So Ramachandran plot are used to study the structure of the protein, that is secondary level of the protein or secondary organization of protein. And secondary structure means alpha helix and beta plated sheet, और beta sheets का फॉर्म आप याद रखेंगे. ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है. आफ्टर दैट सेल का मीनिंग सभी को क्लियर है. सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आप पढ़ते हैं. टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आप स्टडी कर रहे हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. नाउ एक्चुअली वी रिवाइज, सो दैट्स व्हाई यूनिसेलुलर्स आर प्लेस्ड इन टू टाइप ऑफ सेल्स आर देयर. यहीं पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर organisms are of two types, unicellular and multicellular. Unicellulars are placed in kingdom Monera and kingdom Protista. Clear? But multicellular or all multicellular with their identical feature placed in fungi, plantae and animalia. Second chapter 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ आप मर्ज करके स्टडी कर रहे हैं. सो मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर के यहाँ लिख लेंगे. मल्टी सेलुलर इंक्लूडेड इन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. Okay, unicellular of Monera are differ from the unicellular of Protista. So how they differ? Monera, you remember, Monera are prokaryotic unicellular and Protista includes all eukaryotic unicellulars. Clear? So this part you remember, prokaryotic unicellular and Protista includes the eukaryotic unicellular organism. All these are the eukaryote. Now when we come towards the structure of the cell, so one of the important आप study करते हैं यहाँ पे cell theory proposed by Schleiden and Schwann. Schleiden 1838 and German botanist Schwann 1839. ईयर्स बिल्कुल याद रखेंगे एंड कंट्रीज उनके याद रखने हैं, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. ठीक है, सेकेंडली सेल थ्योरी का मीनिंग भी क्लियर है.
कि cell is a basic unit of life and all living being and living structures are made up of cell. But one of the drawback of the cell theory is that कि cell theory fail to explain how the new cells are arises. ठीक है, and that जो drawback था उसके ऊपर किसके थ्रू वर्क किया गया है? Rudolf Virchow work on that principle, and after that Rudolf Virchow in 1855 proposed the concept of omnis celluli. सेल्यूला आप स्टडी कर रहे हैं तो ये एज इट इज याद रखेंगे. सेकेंडली श्वान के लिए आप दो ही इज अ जूलॉजिस्ट, he discovered dense membrane its outermost boundary of animal cell in plant cell wall is present outer to cell membrane. ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे याद रखेंगे. यहाँ पे ये क्वेश्चन एक्चुअली रेज हुआ है कि हु स्टेट्स दैट द सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटर टू सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट. सो दिस स्टेटमेंट वाज प्रोवाइडेड. जो ये जो स्ट्रक्चर है सेल प्लांट सेल का, ये किसके थ्रू प्रपोज किया गया है? श्वान के थ्रू. दो ही वाज अ जूलॉजिस्ट बट अर्लियर ही ऑब्जर्व that cell membrane is the outermost boundary of animal cell. Then he come towards the plant cell ki whether the cell membrane is also the boundary of plant cell or not. So at that time he observed in plant cell in addition to cell membrane the cell wall is present as a outermost boundary. ठीक है, तो प्लांट में सेल वॉल की प्रेजेंस एक्चुअली फर्स्ट टाइम किसने डिटेक्ट किया है? श्वान ने डिटेक्ट किया है. ये आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए. सेकेंडली सेल थ्योरी का ड्रॉबैक याद रहे और डीमेरिट आप कह रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है बट एज सच ड्रॉबैक के फॉर्म में मेंशन नहीं है. तो ड्रॉबैक दैट सेल थ्योरी नॉट एक्सप्लेन हाउ डज न्यू cells arises, and therefore R. Virchow or Rudolf Virchow in 1855 के लिए क्वेश्चन में आया है आपका मिड ऑफ 19th सेंचुरी. ठीक है, सो मिड ऑफ 19th सेंचुरी में रुडोल्फ ओनली टू साइंटिस्ट वर्किंग इन मिड ऑफ 19th सेंचुरी जो फेमस है अपने वर्क के लिए. वन इज रुडोल्फ विर्चोव एंड अनदर इज ग्रेगर जॉन मेंडल. ठीक है, मेंडल का वर्क भी 1856 एंड 1863 7 इयर्स के लिए. हेरिडिटी में आप पढ़ते हैं मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के फॉर्म में. सो हियर यू रिमेंबर रुडोल्फ विर्चोव 1855 दैट इज मिड ऑफ 19th सेंचुरी. किसको प्रोवाइड किया है? Provide the concept of omnis cellula e cellula. Only important part याद रखना है. And with this, ठीक है, the concept of Schleiden and Schwann, concept of Rudolf Virchow कंबाइन किया गया एंड कंबाइन करके फिर क्या प्रोवाइड किया है? मॉडर्न सेल थ्योरी. दैट मॉडर्न सेल थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल सेल ट्रीन और प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन और सेल लाइनेज थ्योरी भी आप कहते हैं. तो इसके बाद आप याद रखेंगे बुक में जो प्रोवाइड है आपको दैट इज मॉडर्न सेल थ्योरी. मॉडर्न सेल थ्योरी और सॉरी प्रिंसिपल cell doctrine or it is also called as cell lineage theory. ठीक है, ये याद रखेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट वी से ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल एंड न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, सो ओमनिस सेलुलाई सेलुला का मीनिंग सभी को क्लियर होगा आप लोगों को कि न्यू सेल्स किसके थ्रू अराइज होंगे? न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग
सेल्स, ये पार्ट याद रखेंगे, नोट करिए इतना। जल्दी लिखो। रफ कर दूं? After that, देखिए, after cell theory, common structure of the cell is explained in NCERT, and under the structure of cell, what structures are present in cell? So one is cell membrane or plasma membrane, then fluid matrix called cytoplasm, and cytoplasm के लिए one most important statement is provided, that is the cytoplasm is main arena of cell. जो physiological activities है, metabolic activities हैं, they all are completed inside the cell cytoplasm. So main arena आपका क्या होगा? physiological activity के लिए cytoplasm, and then dense membrane bound structure is present, that is nucleus. Cytoplasm, main arena of cell, and chemical reactions, NCERT के statement से chemical reactions are completed to keep living state. ठीक है? Cell or organism if present in living state, that means that organism or that cell must show the metabolic reaction. First chapter में आप पढ़ते हैं two identical properties or defining properties of the living organism or living cell is metabolic reaction and consciousness or responsiveness. So metabolism and consciousness or responsiveness are the two twin characters of the living being. ठीक है? और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगे एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं? दे आर कंप्लीटेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म. तो ये पार्ट यहाँ पे याद रखना है. आफ्टर दैट देखिए सेल्स के शेप दिए हैं एंड साइज दिया है. सो वेराइटी ऑफ शेप आर देयर, शेप एंड साइज, एंड अकॉर्डिंग टू साइज सेल्स अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस रेज हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू साइज अगर आप स्टडी करते हैं, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल 0.3 म्यू एम, और ये जो लेंथ प्रोवाइड है, दिस डाटा इज प्रोवाइडेड फॉर द लेंथ ऑफ द सेल. आफ्टर माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का है 3.0 to 5.0 म्यू एम. This is also the data for length. And after that बैक्टीरिया के बाद रेड ब्लड कार्पसल्स और एरिथ्रोसाइट. द डायमीटर ऑफ एरिथ्रोसाइट आप याद रखेंगे 7.0 म्यू एम डायमीटर. आरबीसी का डायमीटर देखिए सेल में प्रोवाइड है, बट रेस्ट ऑफ एंटायर थिंग्स आप कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं? आप स्टडी करते हैं इन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आरबीसी एंड देन आफ्टर लार्जेस्ट सेल के फॉर्म में ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट सेल.
सो इंक्रीजिंग ऑर्डर यही याद रखेंगे आप, शेप के फॉर्म में 1 ईयर क्वेश्चन रेज हो चुका है क्योंकि कि अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, आरबीसी, ऑस्ट्रिच। वायरसेस अगर आते हैं तो वायरसेस आर द पार्टिकल्स हैं, वायरसेस आर नॉट कम्स अंडर द लिविंग because they are a link series between the living and non-living. Protoplasm is completely absent in virus. Virus is only acellular structure है, it is consist of protein and nucleic acid. तो प्रोटोप्लाज्म का किसका यूज करते हैं? वायरस whenever enter inside the host cell, they utilizes the protoplasm of host cell and comes under the living state. Outside the host, viruses are non-living. That's why आप कह रहे हैं कि viruses are acellular structure. ठीक है, तो ये पार्ट याद रखेंगे. If question raised for the smallest particle, so smallest living particle और smallest particle क्या होगा आपके पास? Prion. आप स्टडी कर रहे हैं, वायरसेस स्टडी करते हैं, देन विरियोइड स्टडी करते हैं, एंड आफ्टर विरियोइड्स प्रियॉन्स आर देयर. क्लियर है? इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल ऑफ द वायरस इज कॉल्ड एज प्रियॉन. सो प्रियॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज अ माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ. आप याद रखिएगा. ठीक है, फिर इसी सेक्शन में आप जब बैक्टीरिया के टूवर्ड्स आ रहे हैं तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स प्रोवाइड है. सो बैक्टीरिया के शेप आप लोगों को क्लियर है कि व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. सो कॉकस, बेसिलस एंड सेकेंडली आप स्पाइरिलम एंड विब्रियो, 4 शेप्स आप स्टडी कर रहे हैं. दिस पार्ट यू रिमेंबर. ऑस्ट्रिच एक लार्जेस्ट सेल होगा, nerve cell or neurons, longest cell in animal and acetabularia alga है, unicellular ठीक है. दिस इज longest plant cell. ठीक है, सो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल यू रिमेंबर एसिटेबुलेरिया एल्गा होगा, यूनिसेलुलर एल्गा होते हैं. सो ये पार्ट यहाँ पे याद रखते हैं. एंड देन आफ्टर आपका फर्दर नेक्स्ट पेज पे जब आप आ रहे हैं तो डायग्राम्स प्रोवाइड है. माइकोप्लाज्मा, यूकैरियोटिक सेल, वायरसेस, बैक्टीरिया. लुक इनटू द डायग्राम, बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे डायग्राम दिया है एंड इन दैट डायग्राम अगेन आपके वैल्यूज दिए हुए हैं मिली माइक्रोन्स के फॉर्म में. ठीक है, दोज वैल्यूज आर मेनली फॉर द डायमीटर ऑफ द सेल. यहाँ पे वहां भी देखिए माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया की वैल्यूज दिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज है. वायरसेस भी है आपके, न्यूमेरिकल वैल्यूज वहां पे दिए हैं. दीज वैल्यूज आर फॉर देयर डायमीटर. यहाँ पे माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया का क्या प्रोवाइड किया है? लेंथ. एनसीईआरटी रीड करिए. तो लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया दिया है फर्स्ट सेक्शन में. लिटरेचर के सेक्शन में डायग्राम में जो दिया है वो उसका सेल का क्या दिया है? एंटायर डायमीटर के लिए. ठीक है, सो बोथ वैल्यूज आपको याद रखने हैं. एंड देन आफ्टर वी कम टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, साइटोप्लाज्म का ये जो पार्ट आप स्टडी कर रहे हैं इसी पार्ट में दिया है कि 2 टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. नाउ मीनिंग क्लियर है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का, बिकॉज कंप्लीट है अब अपना आपका नियरली सिलेबस. एंड अब इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है. सो प्रोकैरियोट मीन्स सेल विदाउट definite nucleus or well defined nuclear membrane is completely absent, then the cell is called as prokaryote. Secondly, membrane bound cell organelles. Cell organelles absent नहीं है prokaryote में. ठीक है, membrane bounded cell organelles are absent in prokaryote. Ribosome is the one and only cell organelle which is present in pro as well as eukaryote. ठीक है, and why ribosome is a universal cell organelle? Because it is present without any membrane. ठीक है, so ribosome is the cell organelle which is present devoid of membrane. Membrane bounded cell organelle नहीं है ribosome, and that's why it is called as organelle within organelle. कि राइबोसोम यूकैरियोट में फ्रीली प्रेजेंट है एज वेल एज इट प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आल्सो. ठीक है, in animal cell one another cell organelle is present which is without cell membrane, so that is a centriole. books में centrosome भी mentioned है.
So one centrosome is made up of two centriole or two rod shaped structure. So centriole is the another cell organelle in animal cell. Plant, animal and prokaryote को अगर आप compare करते हैं, so ribosome is the one and only cell organelle which is present devoid of membrane or without membrane. ठीक है, तो ये part थोड़े उस part paragraph में study करेंगे, अभी skip इसलिए किया है because when we come to ribosome then only we study all these parts. प्रोकैरियोटिक सेल स्टडी कर रहे हैं, so प्रोकैरियोटिक सेल that means we mainly study about Monera, and Monera if you study, so in Monera you come towards the second chapter and you when begins with Monera, the first line of Monera is that the bacteria are the sole member of Monera. So though you study Monera, you study prokaryote, we always study bacteria. So bacteria are sole member and originally Monera means, आप किसको स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, न्यू नेम इज देयर, एंड थर्ड इज माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ. ओके, एंड माइकोप्लाज्मा फिर रीड करिए. तो माइकोप्लाज्मा में दिया हुआ है कि माइकोप्लाज्मा आपके कैसे मोनेरा है. तो माइकोप्लाज्मा इज मोनेरा without cell wall. All the Monera show the presence of cell wall, but in Mycoplasma, cell wall is completely absent. Only triple layer plasma membrane. Unique feature भी याद रखेंगे Mycoplasma का. Normally plasma membrane is double layered, but in Mycoplasma triple layer plasma membrane is present. Next आप जब study करते हैं prokaryotic cells और bacteria का, so first part we study about the protective covering of the cell, that is envelope, three layered outer glycocalyx, middle cell wall and inner cell membrane. Glycocalyx may be present as capsule or present as slimy layer. ठीक है, क्लियर है ये सब पार्ट. व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? ग्लाइकोकैलिक्स इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है ओवर द सेल वॉल. वन अनदर प्रोटेक्टिव कवरिंग इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ NAG एंड NAM, N-acyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. क्लियर है ये पार्ट? क्लियर है ना? So NAG and NAM, when NAG and NAM compactly arranged with each other, then they will result in the formation of capsule. When there is a loose arrangement of NAG and NAM, then they are responsible for the formation of slimy layer. Capsule कहाँ पे appear होंगे? Pathogenic bacteria. All pathogenic bacteria show the presence of capsule because this capsule protect the cell wall of bacteria from the effect of antibiotics. ठीक है, because whenever there is a bacterial disease, so to destroy this bacteria or to stop the growth of bacteria, we generally use the antibiotics. And antibiotics bacteria को destroy किसके through करते हैं? Either they stop the protein synthesis or they destroy the cell wall. Most of the antibiotic activate on the cell wall of the bacteria. And to protect that cell wall, bacteria ने किसको develop किया है? During the course of evolution, bacteria develop one more protective layer, capsule और glycocalyx. तो glycocalyx यहाँ पे याद रखेंगे is consist of NAG and NAM. NAG and acetyl ग्लूकोसामीन, ठीक है, प्लस यहीं पे स्टार करके ये स्टेटमेंट आपका कहाँ दिया है NAG के लिए? बायोमोलिक्यूल्स में व्हेन यू कम टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड,
तो NAG का आपका दिया है कि काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ NAG। तो NAG आपका एक तो बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट है along with N-acetyl muramic acid. Secondly, NAG as monomer present in chitinous skeleton of arthropods and chitinous cell wall of fungi। ठीक है, बिकॉज काइटिन भी अपीयर, कुछ डाउट है? हाँ, एनवेलप, हाँ, बैक्टीरिया पे लगा। देखिए नॉर्मली हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाई वी यूज द वर्ड एनवेलप, बिकॉज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज एनवेलप। ठीक है, नॉर्मल प्रोटेक्टिव कवरिंग इन एनिमल सेल इज ओनली सेल मेम्ब्रेन, सो वी ओनली यूज द टर्म सेल मेम्ब्रेन। इन प्लांट फंजाई, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट हो गया है आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, तो हम कहते हैं कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंजाई। ठीक है, जहां भी आप स्टडी करें सेल वॉल इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, बट इन बैक्टीरिया envelope is a protective covering, and how many layers are present in envelope? So envelope is consist of 3 layer, cell membrane inner से outer, if you come from inner to outer, so innerwardly cell membrane is present, then outer to cell membrane cell wall, and then again one most development आपको appear हो गया है glycocalyx। Why this glycocalyx is present? Because initially bacteria when developed, life first begins from the bacteria. Archaebacteria study कर रहे हैं, and these archaebacteria are growing in harsh conditions of the environment. So to protect from the harshness of the environment, one of the tough layer is the, that is called as glycocalyx. First, secondly जो pathogenic bacteria होते हैं, disease causing bacteria, तो जैसे ही बैक्टीरियल डिजीज अगर हम आते हैं कांटेक्ट में, तो बैक्टीरियल डिजीज को स्टॉप करने के लिए या अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटीबायोटिक का। एंड एंटीबायोटिक किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? दे डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। So that's why most of the pathogenic bacteria show the presence of glycocalyx in the form of capsule. Otherwise glycocalyx किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? स्लाइमी लेयर के फॉर्म में। So all these 3 layer combinedly called as envelope. क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि inside in an envelope of bacteria, ठीक है, what is the arrangement of 3 layer from outer to inner? तो outer to inner when you move, so outermost क्या होगा? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। और ये आपने कॉन्सेप्ट कहाँ पे स्टडी किया है? क्लास 9th में चैप्टर रीड करिए, व्हाई डू वी फॉल इल करके एक चैप्टर था आपका। इन दैट चैप्टर ये क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स एंड हाउ एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। वहां पे एक पैराग्राफ है, उसमें एक्सप्लेन किया है कि मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एंटीबायोटिक बैक्टीरिया ने किसको डेवलप किया है? ग्लाइकोकैलिक्स को। ठीक है, तो NAG का प्रेजेंट है। एडिशनली NAG आपको कहां पे याद रखना है ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए? द बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ रहे हैं, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज आल्सो मेड अप ऑफ काइटिन, and the exoskeleton of arthropod is also made up of chitin, and that exoskeleton of arthropod or chitinous skeleton of arthropod is a polymer of, polymer किसका है वो? NAG। ये ऑपोजिट आप स्टेटमेंट वर्ड स्टडी करिए कि NAG is a monomeric unit होगा, कहां पे? as a monomeric unit NAG is present inside a chitinous skeleton of arthropod and cell wall of the fungi। ठीक है, तो NAG 3 फॉर्म में, 3 किंगडम्स में आपको अपीयर हो रहा है। फंजाई में NAG प्रेजेंट है, देन एनिमेलिया में, ऑर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट है, एंड ग्लाइकोकैलिक्स के फॉर्म में मोनेरा में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? और कैप्सूल एंड स्लाइमी लेयर का मीनिंग भी क्लियर है। व्हेन बोथ द मॉलिक्यूल NAG एंड NAM टाइटली क्लोजेस विथ ईच अदर, देन इट इज कैप्सूल, बट इफ दे लूजली अरेंज, टाइट अरेंजमेंट का मीनिंग है कि वन इज NAG NAM, आप इस तरह से शो कर रहे हैं, डार्क वन NAG एंड NAM, when they are situated like this, arranged like this,
देन ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कैप्सूल, टाइट अरेंजमेंट ऑफ NAG एंड NAM, क्लियर है। बट इफ द अरेंजमेंट ऑफ NAG एंड NAM इज वेरी लूज, कहीं किसी का कनेक्शन नहीं है किसी के साथ, देन ये जो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होता है, दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एज स्लाइमी लेयर, और स्लाइमी लेयर को ही इन सम ऑफ द बुक वी यूज द टर्म शीथ। Okay, so sheath is a loose arrangement of NAG NAM and capsule is a tight arrangement of NAG and NAM. तो ये envelope clear हुआ आपको कि what is the envelope now? Second, आप जब स्टडी कर रहे हैं, inside the envelope what is present? Here instead of cytoplasm in Monera or in prokaryote we use the term protoplasm. ठीक है, so why we use the term protoplasm? Because the nuclear membrane is completely absent and there is no differentiation between the, अभी क्लियर है ना बेटा? बीच में अनुष्का हो गया होगा बोल्ड ब्लर, ठीक है, नाउ इट इज ओके। तो प्रोटोप्लाज्म आप स्टडी कर रहे हैं, इनसाइड सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, क्या शो कर रहे हैं? 70S राइबोसोम, सेकेंडली प्राइमरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा यहाँ पे, और incipient nucleus, because nuclear membrane is absent around the nucleus, then that nucleus is called as prokaryotic nucleus। नहीं दिख रहा है, prokaryotic nucleus is called as primary nucleus। चेंज करो पोजीशन अपनी little bit। So prokaryotic nucleus is called as primary nucleus. This nucleus is also called as incipient nucleus. One another term in class 12 you study nucleoid or genophore. These are the new terms for primary nucleus. So genophore, nucleoid और primary nucleus एक ही मीनिंग है उसका, प्राइमरी न्यूक्लियस का, ठीक है। नेटवर्क इशू लग रहा है क्या? थोड़ा रुक के आ रहा है मुझे ऐसे लग रहा है। सो जीनोफोर, न्यूक्लियोइड एंड प्राइमरी न्यूक्लियस इज देयर, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं यहाँ पे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज देयर, दैट इज प्लाज्मिड। सो द नेक्स्ट plasmid you remember, extra chromosomal part of bacterial cell, and plasmid circular DNA, ठीक है। जो प्राइमरी सेल के स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं आप, ये पूरा जितना भी स्टडी कर रहे हैं ड्रॉ मत करिएगा, समझ लीजिए। सो दिस इज द सेल वॉल, आउटर टू सेल वॉल glycocalyx, cell wall is present in between, so glycocalyx and cell membrane you remember, and then the cell membrane, this cell membrane show the projections, ठीक है, एंड दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज मीजोसोम। तो ये जो 3 लेयर्स हैं, आउटर मोस्ट एनवलप, मिडिल वन सेल वॉल एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ऑल दीज 3 कंबाइंड होके क्या कह रहे हैं हम इनको, ऑल द 3 कंबाइंडली कॉल्ड एज एनवलप, क्लियर है। इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म primary nucleus, so this primary nucleus you remember is represented by, or nucleus of the prokaryotic cell represented by single circular double stranded DNA। ये स्टेटमेंट एज इट इज याद रखेंगे, रिपीट हो रहा है ये कि प्राइमरी न्यूक्लियस रिप्रेजेंट बाय और न्यूक्लियस ऑफ द प्रोकैरियोट रिप्रेजेंट बाय
सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा एंड सेकेंडली दिस सिंगल सर्कुलर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आप रीड करिए इस चैप्टर को प्रॉपरली. So it is mentioned the single circular double stranded DNA represent the primary nucleus, and in addition to this primary nucleus or this DNA, one extra DNA is present in the form of, or extra chromosome is present in the form of circular DNA. This circular DNA is actually called as plasmid. ठीक है. And these plasmid अगर आप स्टडी कर रहे हैं, so what is the role of the plasmid? So plasmid, you remember, plasmids are responsible for the antibiotic production. So whatever antibiotics are produced by plasmid, so it produced by whatever antibiotics are produced in bacteria, so these are produced by plasmid. So first thing you remember, plasmid is responsible for antibiotic production, fertility in bacteria or sexual reproduction in bacteria if take place. So that sexual reproduction is also induced by the plasmid. So sexuality in bacteria, antibiotic production in bacteria, किसका रोल होगा? प्लाज्मिड का. तो ये पार्ट याद रखेंगे. प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द सर्कुलर डीएनए. इन एडिशन टू दैट राइबोसोम प्रेजेंट है. एनसीईआरटी में आप राइबोसोम स्टडी करते हैं, सेपरेटली भी अभी हम स्टडी करेंगे. तो 70S राइबोसोम, बट दिस राइबोसोम is attached on the string of messenger RNA. So this is a string of messenger RNA, and on this messenger RNA a large number of 70S ribosomes are attached. So number of ribosomes are attached on messenger RNA, and this structure is called as polyribosome or polysome. ओके. एंड रिपीटेडली ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइबोसोम इन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन पॉलीसोम. तो पॉलीसोम किस रूप फॉर्म है? पॉलीसोम्स आर फॉर्म बाय 70S राइबोसोम, and in 70S ribosome what is the smallest unit? 30S is the smallest unit and 50S is the largest unit. So smallest unit of polysome, you remember answer 30S. Conceptually clear रहेंगे कि number of 70S ribosomes when attached on RNA, then it will result in the formation of polyribosome or polysome. Polysome only present in prokaryote. क्लियर है ना? तो ये पार्ट याद रखेंगे कि पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, ये आप आगे पढ़ते हैं. So polysome is only appear in prokaryote. In eukaryote, polysome formation never appear because ribosomes are attached with endoplasmic reticulum. Eukaryotic cell rough endoplasmic reticulum already you have studied. So all of you know the ribosome, 80S ribosomes are attached on endoplasmic reticulum. So that's why polysome formation will never appear in eukaryotes. Only कहाँ पे appear होगा? Prokaryote में. After that cell wall है आपका. The cell wall of bacteria is responsible for the formation of like or filament like structure that is called as flagellum or flagella. तो flagella का introductory part है. Then bristle like structures are developed from cell wall. So these are called as pili. One time confirm करना, pili bristle like है कि fimbri. देखो उस पार्ट में लास्ट पैराग्राफ जहां पॉलीराइबोसोम लिखा होगा उसके ऊपर प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ब्रिस्टल लाइक. I always confused between Bristol like pili and fimbri. So fimbri, Bristol like and pili tubular होंगे. So these are the pili. ये हो गया complete, and this is the structure of the typical bacterial cell or typical prokaryotic cell. ठीक है, कंप्लीट है ये पार्ट. अपर वाला यहाँ तक हो गया.
कि flagella, when you come towards the revision, so again flagella causes a great confusion because when you study about the protozoa locomotion chapter, वहां पे लिखा है कि flagella are the outgrowths of cell membrane. Okay, but when you come towards the prokaryotic explanation, so here mentioned कि flagella is a outgrowth of the cell wall. क्यों ये differences है? Because in eukaryote, animal cell means eukaryote. So in eukaryote, flagella and cilia are developed from the centriole. ठीक है? So at the base of cilia and flagella, centriole is present in eukaryote, and that centriole is called as basal body or basal granule. So that's why in animal cell और in plant cell, if flagella, plant cell में flagella कहाँ present है? Zoospores में. अगर आपने algae में study किया है कि biflagellate zoospores are present, in fungi also biflagellate zoospores are present. Algae में zoospore कहाँ पे present है? In green algae chlorophyceae and brown algae phaeophyceae. Red algae are completely devoid of zoospores. तो वो part आप याद रखेंगे. Flagella animal cell में whenever develop, they always develop from the plasma membrane. But if we study about the flagella of prokaryote, so they always be developed from the cell wall. And here the flagella made up of flagellin protein without any 9+2 arrangement. Flagella आपने structure cell में ही study किया है कि flagella show the 9+2 arrangement of the tubulin fiber. तो यहाँ पे आप अगर flagella study कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे prokaryotic flagella and eukaryotic flagella. ठीक है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला एक्चुअली ऑल चैप्टर्स हम लोगों को स्टडी करने होते हैं जब हम रिवाइज करते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप स्टडी करते हैं तो ओनली चैप्टर के अकॉर्डिंग वॉट एवर थिंग्स आर प्रोवाइडेड इन चैप्टर दैट वी स्टडी, बट व्हेन वी कम टुवर्ड्स द रिवीजन तो एंटायर कंप्लीट आपके जो 22 चैप्टर्स आप स्टडी कर रहे हैं उसमें वो पार्ट कहाँ कहाँ पे दिया है उसको कंपाइल करके आप चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज करते हैं. सो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, outgrowth of cell wall. Secondly, they are made up of flagellin protein and 9+2 arrangement बिल्कुल याद रखेंगे absent because centriole is not present in prokaryotic cells. Conceptually clear रहेंगे, ठीक है. Eukaryotic cell, eukaryote means animals में basically present है flagella, outgrowth of cell membrane in euglena, cilia in paramecium. Secondly, it is consist of tubulin protein with 9+2 arrangement. Now last 3 years के पेपर देखिए. Longest 9+2 arrangement of tubulin protein, centriole याद है और cilia flagella याद है, स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में. ठीक है, सेंट्रियोल में आप स्टडी करते हैं. सेंट्रियोल इज अ हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ द प्रोटीन. Centrally none of the triplet is present or doublet is present. That's why it is a 9+0 arrangement. अभी स्टडी करेंगे हम. एंड cilia एंड flagella, वो cilia flagella का है. ठीक है, तो cilia में कितने, बुक में देखिए डायग्राम cilia flagella का दिया है. So in cilia flagella 9 doublets are present in periphery. डायग्राम में ही देखिए 2 2 2 2 आपके डबलेट्स बने हुए हैं. सो 9 डबलेट्स आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल रीजन and centrally 2 singlets are present. one protein filament is present in center. दिख गया diagrammatically देखिए. So 9 doublets and all the doublets are attached with each other by the 5 dynein arms. 5 छोटे छोटे आपको head and tail type के structures appear हो रहे होंगे. These are the dynein arms. dynein protein के arms होते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर अभी हम लोग स्टडी करेंगे. सो इन यूकैरियोट फ्लैजिला एंड सीलिया शो द 9+2. दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं. यूकैरियोटिक फ्लैजिला एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओनली मेड अप ऑफ फ्लैजिल प्रोटीन. लॉन्गेस्ट पार्ट फ्लैजिला का क्या होगा?
longest part is filament. Three parts are there, base और हुक हम कह रहे हैं, ठीक है. सो बेसल पार्ट है फ्लैजिला का, देन शेफ्ट इज देयर एंड देन लॉन्गेस्ट पार्ट इज अ, क्या होगा आपका, फिलामेंट. सो फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट. रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड. तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला इज अ फिलामेंट, ठीक है. लोकोमोटरी ऑर्गन है, तो ये पार्ट यहाँ पे this much part you remember for flagella. After that, fimbriae, bristle like, made up of fimbrine protein and help कहाँ पे करते हैं, adhesion to any surface. Whenever bacteria get attached with any of the surface, suppose the Vibrio cholerae enter in intestine and it get attached with the inner mucosa line of intestine, ठीक है. तो अटैचमेंट वो किसके थ्रू करेगा, इट ऑलवेज बी अटैच्ड विद द फिमरी. सो फिमरी ऑलवेज हेल्पफुल इन अधेशन. एंड सेकेंड है पिली. सो पिली यू रिमेंबर, ट्यूब्यूलर, स्ट्रक्चर ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होंगे और फिलामेंटस स्ट्रक्चर. पिलीन प्रोटीन के बुक में ओनली लिखा है दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स. व्हाट आर द स्पेशल प्रोटीन्स, पिलीन एंड पिली हेल्पफुल है इन conjugation or sexual reproduction when take place in bacteria. So one conjugation bridge is formed and through that bridge genetic material of one bacteria transfer into the another bacteria. So that during conjugation pili helpful है and detection में भी helpful है कि whether both the bacteria belong to same species or not. So this part you remember that outgrowth है ये cell wall के कि what are the outgrowth in bacteria or in prokaryotic cells of flagella, fimbriae and pili you remember. After that, ठीक है, आप सेल मेम्ब्रेन स्टडी करते हैं सेल वॉल के बाद. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अगेन सेल मेम्ब्रेन का. सेल मेम्ब्रेन डेवलप मीजोसोम एंड मीजोसोम्स कैसे होंगे, मे बी वेसिकल लाइक, tubular or you remember vessel like, tube like और tubular होंगे. एंड आफ्टर tubular structures आप कह रहे हैं lamellar, लैमिली के जैसे होंगे. लैमिली मीन्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में. सो दीज आर द थ्री शेप्स प्रोवाइडेड एंड फंक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट है. व्हेन दे आर वेसिकल लाइक सो दे हेल्पफुल इन डिवीजन, ठीक है. ट्यूबुलर लाइक रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, लेमिलर है तो वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे. तो ये पार्ट जहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है उसको अंडरलाइन कर लेंगे. आपका लास्ट लाइन होगा जहाँ प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है. उस पैराग्राफ में उस पेज पे देखिए लास्ट लाइन में लिखा है कि इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज मीजोसोम. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव कहाँ पे कर रहा है, या इनफोल्डिंग मींस टुवर्ड्स सेल साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म. ये वेसिकल लाइक होंगे और ये किसके फॉर्म में होंगे, ट्यूब्यूल लाइक मीजोसोम्स. मीजोसोम्स को आप क्या स्टडी कर रहे हैं, मीजोसोम देखिए हेल्प कहाँ पे कर रहे हैं, दे आर हेल्पफुल इन डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, adhesion as well as cellular respiration. And as a cellular respiration in bacteria only, aerobic bacteria, and whenever mesosome involve in cellular respiration, क्योंकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है, ये तो क्लियर है ना. प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कंप्लीटली एब्सेंट.
बट व्हेन बैक्टीरिया एंटर इन एरोबिक रेस्पिरेशन, अब एरोबिक रेस्पिरेशन आप स्टडी कर चुके हैं क्रेब्स साइकिल के थ्रू, so that when the Krebs cycle take place in bacteria, so to complete that Krebs cycle in protoplasm में ही होता है यहाँ पे Krebs cycle, a number of enzymes are required and all these enzymes of the Krebs cycles are stored in वेसिकल लाइक मीजोसोम। तो यहाँ पे मीजोसोम कहाँ पे हेल्प कर रहे हैं? मीजोसोम्स आर ऑल्सो हेल्प इन cellular respiration, that means in Krebs cycle, and that's why mesosomes are also called as prokaryotic mitochondria. So whenever they helpful in respiration, mesosomes को आप कहते हैं prokaryotic mitochondria. Clear है? Because they help contain all the enzymes required for the Krebs cycle. तो ये पार्ट याद रखेंगे और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है जो आप प्रोकैरियोट्स में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। राइबोसोम, प्लाज्मिड ओनली याद रखेंगे, इट इज अ सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट और एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए ऑफ द बैक्टीरियल सेल। एंड देन cell inclusions means the structure which are present inside the cytoplasm or protoplasm. Ribosome 70S always associated with messenger RNA. ठीक है, एक क्वेश्चन मिलेगा, पॉलीसोम इज कंसिस्ट ऑफ, सो पॉलीसोम इज कंसिस्ट ऑफ 70S राइबोसोम एंड मैसेंजर आरएनए। वन क्वेश्चन आया हुआ है कि स्मॉलेस्ट यूनिट, तो वो भी क्लियर हो गया है। वट एवर यूनिट स्मॉलेस्ट हो या लार्जेस्ट हो, 70S के जो यूनिट होंगे वही आपका आंसर होगा। तो ये पार्ट याद रखेंगे एंड पॉलीसोम के साथ साथ 3P याद रखिएगा। 3P है आपका, फर्स्ट प्रोकैरियोट, सेकेंड पॉलीसोम and polycistronic. Polycistronic term mRNA के लिए यूज होते हैं, but these 3P are commonly used for the prokaryotic cell. कितने राइबोसोम्स आपको अपीयर हो रहे? 5. So these 5 ribosomes synthesize the 5 type of proteins because ribosome is associated with protein synthesis. So one mRNA responsible for number of protein. Then it is called as polycistronic. अभी नोट कर लीजिए, क्लास 12th में ये डिटेल आपको स्टडी करना है कि why there is polycistronic in prokaryote and monocistronic in eukaryote. बट polycistronic अगर वर्ड है तो प्रोकैरियोट याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरियल सेल और आप जनरली स्टडी कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को, एंड आफ्टर दैट ये कंप्लीट है ये पार्ट। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए वी कम टुवर्ड्स यूकैरियोटिक सेल। सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। डिफरेंट डिफरेंट जोन्स फॉर अ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा और प्रोटेक्शन के लिए।
प्रोटोप्लाज्म, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखेंगे, Huxley states that protoplasm is physical basis of life। ये बिल्कुल याद रखेंगे स्टेटमेंट। एंड प्रोटोप्लाज्म में अब आप स्टडी कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स आर, प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग तो क्लियर है ना। प्रोटोप्लाज्म वाई वी से, बिकॉज इट डिस्टिंग्विश इन बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड cytoplasm। So in eukaryote generally we use the term cytoplasm, but originally protoplasm है, but that protoplasm due to presence of nuclear membrane differentiated into cytoplasm and nucleoplasm। So cytoplasm is present in between nuclear membrane and cell membrane, and nucleoplasm आपका किसके थ्रू बाउंडेड है? It is bounded by a nuclear membrane। तो ये याद रखेंगे। Now cell organelle स्टडी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। So थ्री टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोटेक्टेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, एंड देन विदाउट मेम्ब्रेन और डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड only two cell organelles, mitochondria and plastids, or instead of plastids write down chloroplast। ठीक है, and both these cell organelles are also called as semi autonomous organelles because they are having their own DNA। ठीक है ना, तो इनका अपना खुद का डीएनए है, दे आर हैविंग देयर ओन सर्कुलर डीएनए। क्या हो गया मास्क लगा लिया अचानक से। तो क्लास का भी ये तो वही कंडीशन हो गई जैसे लोअर क्लास में बच्चे बैग वैग पैक कर लेते हैं लास्ट है ना, लास्ट पीरियड में 10 मिनट्स में कि नो टीचर बिल्कुल अब पढ़ाई ना खत्म अभी मास्क, वही मुझे लगा कि टाइम हो गया है क्या कि मास्क लगा लिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे एंड आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बिकॉज दे आर हैविंग देयर ओन सर्कुलर डीएनए। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड में देखिए, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड में फर्स्ट आप स्टडी करते हैं एंडो, शॉर्ट ही हम लिख रहे हैं अब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड गोल्जी बॉडी, थर्ड lysosome and fourth vacuoles, and all these four cell organelles are placed under endomembrane system। and why all these cell, firstly all the four cell organelles are interconnected with each other, ठीक है, and secondly why they comes under endomembrane system because they develop from the inner membrane of the innermost membrane। innermost membrane क्या है सेल में? nuclear membrane is the inner membrane, ठीक है। inside the cell membrane one more membrane is present that is called as nuclear membrane, and the outer nuclear membrane is responsible for the formation of endoplasmic reticulum and Golgi body। Golgi body से किसका formation होगा? lysosome and vacuoles। so lysosome and vacuoles are actually developed from the Golgi body, and Golgi body and endoplasmic reticulum किसके through develop हो रहे हैं? they are developed from the nuclear membrane। याद रखिए which nuclear membrane? two membrane है nucleus में, outer and inner। so outer nuclear membrane is responsible for the formation of endoplasmic reticulum and Golgi body। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एक्चुअली कहा जाता है एंडोमेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एक्सोमेम्ब्रेन। so that's why all these four organelles are placed under the endomembrane system। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, तो ये याद रखेंगे। इन एडिशन टू दैट माइक्रो बॉडीज आर देयर, माइक्रो बॉडीज एनसीईआरटी में बिल्कुल न्यूक्लियस के बाद मेंशन्ड है। वेसिकल्स जितने भी है
enzyme containing vesicles. All the vesicles are comes under the microbodies. Peroxisome in photorespiration, spirosome, glyoxysome, all these are comes under microbodies. And then devoid of membrane में आप study कर रहे हैं. So first cell organelle is ribosome in all, and next centriole. Centriole is present in animal cell. Clear? And proteinaceous filament, centriole, cilia, flagella combined होके किसका formation करेंगे? They will combined and responsible for the formation of cytoskeleton. So centriole, cilia, flagella, all they are made up of proteinaceous filament. So that's why they comes under the cytoskeleton. ठीक है? यहाँ पे first हम किसको study करेंगे? Cell membrane को study करते हैं. And then after we come towards the mitochondria and chloroplast. इंट्रोडक्टरी नहीं, कंप्लीट अपन पूरा ही कर रहे हैं, बट ग्रामेटिकल पार्ट स्किप कर रहे हैं. ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से इसी फॉर्म में लिखते जाएंगे, चार्ट्स बाद में ड्रॉ कर लेंगे आप. सिलेक्टिव परमिएबल है. ठीक है, इट इज लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन. अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड किस फॉर्म में मिलेगा? प्रोटीन, लिपिड, लिपिड एंड प्रोटीन अरेंजमेंट. प्रोटीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के फॉर्म में पढ़ते हैं. लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में होगा आपका अरेंज, and this bilayer of lipid is arranged in the form of head and tail. Heads are oppositely oriented and tail कैसे होंगे? They are present towards each other. ठीक है, so ये part यहाँ पे याद रखेंगे, lipid bilayer. And if we come towards the thickness, so thickness of the plasma membrane is universal 75 angstrom, and this thickness is provided according to the Robertson unit membrane model. So Robertson unit मेम्ब्रेन मॉडल, इट इज नॉट इन एनसीईआरटी और पढ़ा नहीं है तो हम लोग रिवाइज भी नहीं करेंगे. सो रॉबर्टसन वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट टाइम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन and state that structure as a unit membrane model, because in all the cells from bacteria to the animalia, whenever we study about the plasma membrane, the thickness of the plasma membrane is 75 angstrom. ठीक है, and how does it 75 angstrom? तो यहाँ पे ये याद रखेंगे 75 एंगस्ट्रॉम में लिपिड bilayer is of 35 angstrom and प्रोटीन आउटर एंड इनर के फॉर्म में है. सो प्रोटीन लेयर ऑफ 20 angstrom, and in this way the membrane show the 75 angstrom thickness. ये इतना पार्ट याद रखेंगे, ये बिल्कुल याद रखिएगा. ये आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. सो प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल आप जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, दैट वी स्टडी अबाउट फ्लूइड मोज़ेक model, fluidity of the membrane developed by Litt, and mosaic word we use for the protein. लिपिड किसको फॉर्म कर रहे हैं? दे आर क्वासी फ्लूइड इन नेचर.
दिया है ये पार्ट एनसीईआरटी में, ठीक है। सो फ्लूइड मींस permeability of the membrane किसके ऊपर डिपेंड होगा? some of the part of plasma membrane we study when we discuss about the facilitated diffusion. Okay, so the permeability of the membrane is totally dependent on the lipid. The molecule which are soluble in lipid, they can easily transported across the membrane. The molecule which are dissolved in water means aqueous solution में है या फिर hydrophilic moiety है. So for hydrophilic moiety membrane is selective permeable and but for hydrophobic membrane कैसे होगा? हमेशा परमिएबल, ठीक है। एक वैल्यू दी है कि प्रोटीन कितना परसेंट है, लिपिड कितना परसेंट है, वो एज इट इज अंडरलाइन करेंगे। और वो याद आपको किसके लिए रखना है कि वट एवर स्ट्रक्चर इन एनसीईआरटी वी डिस्कस अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट वी मेनली डिस्कस अबाउट द आरबीसी और एरिथ्रोसाइट। आप स्ट्रक्चर किसका डिस्कस कर रहे हैं? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एरिथ्रोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। वहां दिया हुआ है कि इन आरबीसी लिपिड 52 है एंड समथिंग 40% कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, तो वो आप रीड कर लीजिएगा और अंडरलाइन करेंगे कि लिपिड का परसेंटेज कितना है और प्रोटीन का परसेंटेज कितना है, ठीक है। अरेंजमेंट अगर आप देख रहे हैं तो अरेंजमेंट में बिल्कुल स्मॉल डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो 3 डायमेंशनल डायग्राम है। So these are the lipid bilayer. This is a single layer of lipid. Internal proteins are present. These are called as intrinsic protein or flip-flop protein that we already discussed in facilitated diffusion. Porine protein भी कह रहे हैं आप इनको. Similarly, so hats are oppositely oriented. Protein which interrupt the continuity of lipid, that is called as intrinsic protein, integral protein. ठीक है, this is bilayer of lipid 35 angstrom. This is extrinsic protein or outer protein, peripheral protein, and these are intrinsic protein. बिल्कुल शॉर्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन. प्रोटीन आपका every layer of the protein is of 20 angstrom. ठीक है, एंड इन दिस वे थिकनेस कितना होगा? 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज मेंटेन बाय, बिल्कुल याद रखेंगे, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज मेंटेन बाय लिपिड, ठीक है. परमिएबिलिटी एंड दीज इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम आप स्टडी कर रहे हैं, बार बार रिसेप्टर पढ़ रहे हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप जब क्रिएशन का रेगुलेशन स्टडी कर रहे हैं, जी एपरेटस स्टडी कर रहे हैं, वहां पे भी आप ऑस्मो रिसेप्टर स्टडी कर रहे हैं. व्हाट आर दीज रिसेप्टर? दीज रिसेप्टर्स आर द एक्सट्रिंसिक एंड इंसिक प्रोटीन. तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टर्स. पोरीन प्रोटीन, अकॉर्डिंग टू टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज हो रहे हैं. सो रिसेप्टर्स इन म्यूकोसा मेम्ब्रेन और एंडोथेलियल लाइनिंग, पोरीन प्रोटीन. तो आप ट्रांसपोर्ट को स्टडी करते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन में. परमिएबिलिटी, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के लिए 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. सो फॉर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन परमिएबल, ठीक है, क्योंकि ये जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होगा व्हेन दिस हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कैन इजीली पास अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर. इसको यहाँ पे कुछ भी रेजिस्टेंस कॉज नहीं होगा मेम्ब्रेन के थ्रू. बट व्हेन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इज एंटर and this hydrophilic molecule comes in contact with lipid bilayer, so lipid is insoluble, so lipid molecules will not allow the transport of this hydrophilic molecule. So automatically हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के लिए क्या अवेलेबल हो गए हैं? पोरीन प्रोटीन.
सो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, यू रिमेंबर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए मेम्ब्रेन कैसे होगा? मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल. ओके, सो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी यू रिमेंबर. तो ये यहाँ पे याद रखेंगे मेम्ब्रेन का पार्ट. फंक्शंस क्लियर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? सो ड्यूरिंग रिवीजन नो नीड टू राइट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट आप स्टडी कर रहे हैं. बाय यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट. क्लियर है? एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप स्टडी कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में. सोडियम पोटेशियम पंप इज एग्जांपल फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट एक्चुअली द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इन प्लांट फिजियोलॉजी हम सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं उसको. ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पे इतना याद रखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए. क्लियर है? फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन बिल्कुल याद रखेंगे, ड्यू टू लिपिड. एंड लिपिड किस नेचर में? क्वेसी फ्लूइड नेचर में आपके प्रेजेंट होते हैं. आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट आप स्टडी करते हैं, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी का रिवाइज कर रहे हैं हम लोग. स्ट्रक्चर क्लियर है? फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल किसने प्रोवाइड किया है? सिंगर एंड निकोलसन. ठीक है, एक एडिशनली ये क्वेश्चन आ रहा है, एनसीईआरटी में नहीं है. अरेंजमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इज एक्सप्लेन बाय सैंडविच मॉडल. In between protein layers, protein is equivalent to bread slices and stuffing is equivalent to the lipids. ठीक है, so sandwich model आप याद रखेंगे by Denley and Davison. नेक्स्ट अब देखिए, आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स को हम पोस्ट स्टडी करते हैं. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. प्लास्टिड, storage and synthesis of food. Leucoplast, three type of plastids are there. Chloroplast and then chromoplast. Leucoplast colorless, green color, and chromoplast कलरफुल. वैरायटी ऑफ कलर्स हम अब करते हैं क्रोमोप्लास्ट में. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको सेपरेटली पढ़ते हैं. क्लोरोप्लास्ट मेन फंक्शन फूड स्टोरेज. यहाँ पे फंक्शन है photosynthesis means food synthesis, and chromoplast in floral petals responsible for pollination, insect pollination. So chromoplast mainly helpful in insect pollination. Now food देखिए कितने टाइप का है आपके पास? 3 टाइप का. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन. ठीक है, so plastid which responsible for the storage of carbohydrate, that plastid is called, शॉर्ट में बिल्कुल याद रखेंगे, अमाइलो प्लास्ट. व्हाइट कलर, वेयर यू ऑब्जर्व पोटैटो ट्यूबर, पील आउट द पोटैटो, व्हाइट कलर ही मिल रहा है आपको. ठीक है, पोटैटो का. तो पोटैटो, व्हीट, राइस, ये जितने भी आप स्टडी कर रहे हैं, ऑल दीज आर कलरलेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमाइलोप्लास्ट. तो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज प्लास्टेट क्या होगा आपके पास? अमाइलोप्लास्ट है. फैट,
ओलियोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट, ऑयल सीड्स एंड नट्स। तो ओलियोप्लास्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? ऑल द ऑयल सीड, कैस्टर सीड, मस्टर्ड है, ठीक है, सनफ्लावर सीड, सभी में आपको क्या मिल जाएंगे? वी ऑब्टेन द, इवन इन सोयाबीन सीड ऑल्सो वी ऑब्टेन ओलियोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट, एंड इन नट शेल ऑफ द ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे ये इतना पार्ट याद रखेंगे, इलियोप्लास्ट एंड देन प्रोटियोप्लास्ट, प्रोटीन स्टोरेज प्लास्टिड्स जनरली कॉल्ड proteoplast, or one separate name is provided, aleuronoplast. But when we use aleuronoplast, that means we only talking about the maize. ठीक है? So in maize, aleuron protein actually presented, and that's why that plastid is called as aleuronoplast. So aleuronoplast in maize, protein storage plastids. Legumes, says, and predominantly सोयाबीन। क्लोरोप्लास्ट को स्किप करेंगे, ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस में भी रिवाइज कर लिया है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो क्रोमोप्लास्ट आप स्टडी करते हैं, क्रोमोप्लास्ट, यहाँ स्पेस है तो अदरवाइज नीचे लिखिएगा। टू टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्रोमोप्लास्ट आर कलरफुल पिगमेंट्स, दे मे बी वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। प्रोटीनेशियस होंगे तो वाटर इनसॉल्युबल होंगे, एंड शुगर के कंपाउंड्स होंगे सो दे बिकम अ वाटर सॉल्युबल। शुगर कंपाउंड्स के फॉर्म में आप एंथोसाइनिन पढ़ते हैं बीट रूट में, चुकंदर को आप कट करके पानी में डालते हैं तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा वाटर कलरफुल हो जाता है ना। और कैरेट को, टोमेटो, पपाया कट करके पानी में डालिए, नो चेंज इन वाटर कलर। वाई? बिकॉज जो कैरेट में, पपाया में आपके कैरोटीन या ज़ैंथोफिल है, दीज आर द प्रोटीनेशियस पिगमेंट्स, ठीक है। बट यहाँ पे जो एंथोसाइनिन है, एंथोसाइनिन इज वाटर सॉल्युबल बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट आपके ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए पढ़ते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट आपके कैसे होंगे? देयर आर टू टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट, वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट करके क्वेश्चन आया हुआ है। सो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट क्या होंगे? एंथोसाइनिन फ्लोरल पेटल्स में प्रेजेंट है एंड रूट्स में। सो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एंथोसाइनिन, मेड अप ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट, एंड वाटर इनसॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स, प्रोटीनेशियस पिगमेंट होंगे, एंड कैरोटिनॉइड क्लियर है, टू टाइप के, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, ठीक है। कलर लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। कैरोटीन ऑरेंज टू रेड कलर होंगे, ज़ैंथोफिल येलो कलर के हैं, एंथोनी पिंक टू रेड, और एंथोसाइनिन आपके कहाँ प्रेजेंट है? प्रीडोमिनेंटली बीट रूट लिख लेंगे वहां पे, तो बीट रूट में प्रेजेंट होंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट याद रखिएगा प्लास्टिड्स के लिए, ठीक है।
ठीक है, शॉर्ट में ठीक है, मोस्ट कॉमन प्लांट में जो शेप होगा क्लोरोप्लास्ट का वो होगा डिस्क शेप। रेस्ट ऑफ थिंग क्लियर है? ठीक है, तो मेन मेन पार्ट याद रखिएगा एंड देन आफ्टर हो गया ये पार्ट। टाइम देखना, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया अब रहने देते हैं हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इतने पार्ट्स के लिए एनसीईआरटी मिनरल न्यूट्रिशन ना बचा हुआ है, पढ़ना है वो भी इसी फॉर्म में पढ़ना है, ओनली चार्ट्स के फॉर्म में, है ना, कि एसेंशियलिटी क्या है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है, कुछ टर्म्स दिए हैं ना, तो ओनली इन टर्म्स ऑफ चार्ट से स्टडी करेंगे हम लोग। क्लोरोप्लास्ट तो आप whenever you come towards revision for cell and you study chloroplast, so immediately you shift towards the photosynthesis। ठीक है, और एंटायर क्लोरोप्लास्ट को वहां पे आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि एज सच ओनली क्लोरोप्लास्ट का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। दिस ईयर आपका 2021 में ये क्वेश्चन आया है मैच द कॉलम में, फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थाइलेकोइड और ग्रेना के लिए है, तो वो डेफिनेशन थाइलेकोइड के याद रखेंगे। थाइलेकोइड इज फ्लैट सैक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, टू सरफेसेस होंगे। ग्रेनम लैमिली कह रहे हैं आप इंडिविजुअली थाइलेकोइड को, ग्रेनम लैमिली से ग्रेनम एंड ग्रेनम विल बिकम अ ग्रेना। कंप्लीट हो गया हो तो आप लोग मुझे बता देंगे, सो आई ओवर द क्लास।
कंप्लीट है। सो ओके, नाउ आई एंडेड द क्लास। कुछ पार्ट अगर होगा तो बाद में देख लीजिएगा वीडियो से। ओके।